Welcome to our special show on cricket called the No Filter Cricket Show, and we've given that name because we try and speak about certain issues, about certain matters, about certain situations that happen on a cricket field, why it happens, also the way cricket is being managed. It's a huge game now. But let's begin specifically on this show, and the topic today is the trauma of a humiliating loss. Now, you would have seen and enjoyed the fact that in IPL, particularly, and of course in certain T20 matches, also it has happened in Test cricket, that suddenly some uh, hapless bowler or even a front ranking bowler is taken apart. पांच छक्के छह छक्के एक ओवर में पड़ते हैं, लोग ताली बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं, उस बैट्समैन का नाम हो जाता है, वो बैटर को और पैसे मिलते हैं, ब्रांडिंग मिलती है, लेकिन उस बॉलर का क्या होता है, कभी सोचा आपने? ये भी है जरूर कि हर एक को पैसे दिए जाते हैं, और आप एक काउंटर कर सकते हैं कि अगर एक बॉलर है, so he's playing also for money, he's also playing for his side, so if he gets a hammering on one day, he should be able to take it. बट ये कहना आसान है, और कई ऐसे ह्यूमिलिएटिंग लॉसेस के बाद बॉलर्स पे जबरदस्त इम्पैक्ट रहा है. हमारे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है जहाँ पे लोगों को मेंटल डिप्रेशन हुआ, कई बॉलर्स तो कई रात सो नहीं सके, कईयों पे उनके अपने सोशल ट्रॉमास होते हैं, दोस्त फोन कर करके पूछते हैं कि ये तूने ऐसे कैसे पिटवा दिया. तो ये मुद्दा काफ़ी पेचीदा है, और मेरे दोस्त CS लूथरा इस शो पर मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा. वेलकम टू द शो CS. Thank you, Arun. So let's begin with the immediate trigger, of course, is Rinku Singh smashing the daylights out of Yash Dayal, 5 sixes in one over. We both saw the match, and what I couldn't figure out is that why those full tosses one after another. Now, some of the experts and purists are saying that the fast bowlers in the death over, they try to bowl yorkers, but the batters stand outside the crease, so the line goes wrong. Now, that may be the case, and that is the case also, but anybody who's bowling at this level should be able to counter, should be able to sort things out rather than getting bashed like this. I just feel sorry for this, young guy, because last year, if you remember, his season was, he was talked about, the entire season, and especially, he was doing so well. But right now, the way he was hammered, I don't think he's going to even play the entire season, because that's the way, you have to overcome that depressing phase of your career, and especially Rinku. For Rinku Singh, obviously we all know he's a talented player. He smashes it big, but nobody could have ever thought about this kind of hitting, 5 sixes, and that too in the last 5 balls of a match. Not even the innings. It was the last 5 balls of the match, and all those 5 were necessary to win that particular game. So there are 2 ways. I was actually thinking about one old, conversation I had with Robin Singh Jr., that India player. He played 1 or 2 test matches in New Zealand long back, early 90s or so. I remember a conversation with him where he said that when they were playing against New Zealand in that windy conditions, and ball was actually swinging and it was difficult to control. So most of the players, in the slip cordon, वो नया player जब जाता तो he relies a lot on his captain and also on the players who are standing behind the wicket. और वो सब कहते हैं इधर करो, ऐसा ना करो, इस तरह से ball करो. And I remember he came back as a very, very, depressed person. And even after, say, 20 years or so, when I had this conversation, he said, शेखर भाई गलती हो गई, अगर ना सुना होता किसी का, सिर्फ अपनी बॉल की होती, अपने दिमाग से की होती, तो आज मैं इंडिया खेल रहा होता. दैट्स द काइंड ऑफ जो उनको उसको इम्पैक्ट था उस तरह का. बिकॉज होता है कि आप स्लिप में खड़े हुए कॉर्डन में, आप कोई बोलता है बाहर करो, कोई कह रहा है अंदर करो. तो सेम थिंग विद दयाल ऑल्सो, यश दयाल is a good bowler, lefty bowler, and especially at a time जब बॉल कर रहे हो, और जब बॉल बिल्कुल पुराना हो चुका है, ड्यू फैक्टर नहीं है यहाँ पर इस वक्त पे. ये कोई ड्यू फैक्टर वाला टाइम है कि बॉल गिल्ली है तो आपके हाथ से फिसल रही है, कोई ड्यू फैक्टर नहीं है. आपको सिर्फ बॉल को पिच करना है.
उस पिच में मे बी समबडी वाज, कोई पीछे से विस्पर कर रहा हो, फुल टॉस करवा, स्विंगिंग यॉर्कर जैसे एक बार चेतन शर्मा ने किया था, कोशिश की थी जावेद मियांदाद के, और स्टेडियम के बाहर गए थे। वो छक्का वो कभी नहीं भूल पाए, उसके बाद उनका करियर ढलान पर ही रहा। और तो इस तरह की मुझे याद आती है कि प्लेयर जब बाहर खड़े हुए थे स्लिप कॉर्नर में, बड़े बड़े इंडिया के स्टार्स खड़े होते और उनको बता रहे थे रॉबिन सिंह जूनियर को बॉल को बाहर कर, बिकॉज मैकमिलन वाज हिटिंग एवरीबॉडी। और वो जब हिट करते थे मैकमिलन, अगर आपको ध्यान हो, बहुत ही बढ़िया पिच स्ट्रोक प्लेयर थे, और उन्होंने 100 कुछ की इनिंग्स की थी, और उनको बस ये कहते रहे बाहर खिलाते रहो। कहता शेखर भाई मुझे अंदर ही बॉल नहीं करने दी, मैं फास्टेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया था, मैं गया था, बॉल स्विंग हो रही थी, पर मुझसे बाहर करवाई और मैं बाहर करता करता बाहर हो गया। वो लोग आज भी इंडिया खेल रहे हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन ऑन एनी यंगस्टर। और यश दयाल दयाल बिल्कुल यंगस्टर हैं, उनको भी किसी ने जरूर गाइड किया होगा कि इस तरह की बॉल करो। आई एम वेरी अमेज्ड समवेयर, आपको वो लगता भी है कि किस तरफ क्रिकेट जा रहा है। अगर आप लगातार फुल टॉसेस कर रहे हो तो छक्का मारना कोई बुरी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बुरी तो नहीं मैं कहूंगा, बड़ी चीज नहीं है। फुल टॉस जो आपके बिल्कुल, जो क्रिकेट में कहते हैं ना, बिल्कुल मिडल पर आ रही हो, उस पर नहीं 6 मारोगे तो कब मारोगे। तो समवेयर ए रॉन्ग strategy, a wrong planning by all those people who are standing, inside that field, or sacrifice is only one player. Explore your creativity with classes in illustration, photography, design, and more. Start for free today by clicking the link below. Right, CS, so you made your point. You're basically saying that the kind of advice that is given to a young bowler on the field is very, very important, because if that advice is wrong, then that bowler suffers and not the rest of the team. Of course, they might lose the match, but the impact on the bowler is huge. I would want to list a very important incident that happened with Yuvraj, who's of course known for hitting 6 sixes of Stuart Broad, but that was but when he was at the receiving end, this is what happened. So he was Yuvraj was hit for 5 sixes in a row during an ODI at the Oval by Dimitri Mascarenhas, the England player. And this is when India had toured England in 2007, just before the inaugural edition of the T20 World Cup. Now, years later, on a show, on a TV channel, Yuvraj basically said that I don't know why Rahul Dravid, who was the captain then, asked me to bowl the last over. And to quote him, Yuvraj said, I was playing a game at the Oval, and I don't know why Dravid gave me the ball to bowl the last over. Dimitri Mascarenhas hit me for 5 sixes in 6 balls. I'm glad he didn't hit me for 6 sixes, and I couldn't sleep for the next 15 days. युवराज ने ये भी कहा कि इतने ज्यादा कॉल्स उनके दोस्तों से, उनकी फैमिली से आए, जो कंसर्न जता रहे थे कि बेटा तू ठीक है या नहीं, तू सो पा रहा है या नहीं। तो ये एक अजीब सा एक सोशल स्टिग्मा होता है बॉलर के लिए, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब इंसान हैं, यंग प्लेयर्स हैं। अब इस तरीके से आपने किसी को आगे बढ़ा दिया और वो इस बुरी तरीके पिटा, दैट इम्पैक्ट ऑन द माइंड, impact on the person's social standing is huge. It is much more than what you and I can imagine. I mean, we see one game, we clap and weep or wail, whatever the case may be, whoever you're supporting. But someone who's getting belted like this, who cannot sleep for 15 days, and he can still recall it years later, like CS said about Robin, 20 years later, he's able to recall that match, which may have turned his life around. So CS, how do you see this? देखिए, विजन की बात है। वी स्पोक अबाउट दिस फ्यू एपिसोड्स बैक। ये विजन की बात है। जब आपको T20 को लाना था, बड़े बड़े सक्सेस दिखाने थे, सो मिस्टर ललित मोदी इज अ ग्रेट मैन, फ्यूजिटिव, ऑब्वियसली एवरीबॉडी सेज दैट ही शुड बी ब्रॉट बैक फॉर ऑल द रॉन्ग डूइंग्स व्हिच ही हैड डन, बट फॉर क्रिकेट, इवन इफ ही इज ब्रॉट बैक, यू कैन नॉट इंप्रूव योर क्रिकेट। सो आई एम वेरी सर्टेन कि क्रिकेट खराब हो गई है, और क्रिकेट को बचाना यहाँ से किस तरफ जाएगी, आई डोंट नो। लाइक हमारी एज इस तरह की, अगले 10-15 साल हम शायद क्लोजली देखेंगे अगर जिंदा रहे इस कोविड के टाइम में, और उसके बाद क्या होगा गॉड नोस। ये बेसबॉल बनेगी या कोई नया एक आया था ना, मैंगोज बैट एक आया था, छोटा सा बैट था नीचे से, और उससे मैथ्यू हेडन ने एक बार 60 कुछ भी मारे थे। तो उस तरह का कुछ नए एक्सपेरिमेंट हो गए। बिकॉज द पॉइंट इज, आई टोल्ड, जितने भी लोग दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, क्रिकेट के इक्विपमेंट के साथ बहुत सा खेल हुआ है। इस बॉल की आज हम बात करते हैं जिससे प्लेयर्स को मार पड़ रही है। तो विजन ये था
कि आपको कोई भी मैच ऐसा नहीं चाहिए जिसमें 50, 60, 20 या 36 पे जैसे इंडिया आउट हो गया था एडिलेड में, उस तरह का मैच नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उस तरह का मैच हुआ तो आपको एडवर्टाइजमेंट का घाटा होगा, आपकी हर एक चीज में स्टेडियम में जो बिक्री होगी वो कम होगी। तो विजन ये था कि आपको हर मैच 150, 200, 250 वाला मैच चाहिए, और जितना बड़ा होगा जितने छक्के लगेंगे उतना कमाल होगा। आज 5 मैचेस के बाद 100+ छक्के लग चुके होते हैं एक मैच में, कमाल है ये। मतलब कि या तो विवियन रिचर्ड्स बड़े कमजोर थे, या क्लाइव लॉयड को उससे छक्का नहीं लगता था, या गॉर्डन ग्रीनिस जिन्होंने एक बार थॉमसन को मारा था, स्टेडियम के बाहर चली गई थी बॉल, पर्थ में या कहां पर 100 की स्पीड पे वो बॉल कर रहे थे। या तो वो लोगों को समझ नहीं, क्रिकेट नहीं आती थी, या आजकल के ये चाहे रिंकू सिंह की बात करें या कुछ भी छोटे छोटे ठिगने जितने भी प्लेयर हैं, इनकी इतनी कलाइयां पावरफुल होगी कि ये बड़े छक्के मार रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा ये आपके साथ खेल किया जा रहा है। ये खेल वैसा ही हो रहा है जैसे, खैर लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन ये खेल वैसा है कि आपकी बॉल के अंदर जो कॉर्क होता है, जो पहले अगर कोई क्रिकेट खेलता था हमारे वक्त में, आपके वक्त में, तो कॉर्क कितना सा होता था, बिल्कुल छोटा सा, मैं एक कहूँगा एक कंचे की तरह का, एक अगर किसी ने मार्बल्स खेले हो, और उसके ऊपर रस्सी को लिपटाते थे और उसके बाद उसको कवर करते थे और सिलाई होती थी। दैट वाज द ओरिजिनल। तो उस रस्सी का इम्पैक्ट क्या होता था, बॉल यूज्ड टू ट्रेवल लेस, उस बॉल को जो का बाउंस भी अलग होता था, उस स्पॉन्जी बाउंस नहीं होता था, ये सब हुआ। तो जब ये व्हाइट बॉल्स बनानी शुरू की तो इनको तो इंस्ट्रक्शंस भी दी गई। मैंने एक प्रोग्राम किया था, यूट्यूब में था, मैंने एक चैनल के लिए प्रोग्राम किया था, बकायदा जा करके उसको उड़ा दिया गया है पूरी तरह से, वो अब मिलता नहीं है, मुझे भी नहीं मिलता, तो किसी और को क्या मिलेगा। तो ऐसे में जब आप उस इक्विपमेंट का करो, आज उस कॉर्क को इतना बड़ा कर दिया, उससे एटलीस्ट 3, 4, 5 टाइम्स बड़ा कर दिया, और रस्सी है ही नहीं। तो यानी रस्सी ना होने से अब बॉल हैज बिकम मोर स्पॉन्जी, हल्की सी, और मशीन की वजह से, क्योंकि बहुत टाइट को अब मशीन सिलती है, तो उसका वो इम्पैक्ट उस तरह से बाउंस में नहीं आता। लेकिन व्हेन यू हिट द बॉल, इसकी ट्रेवल्स मोर। तो आप रिचर्ड से बड़े छक्के मारते हो, बॉल इतनी दूर जाती है कि आप घबरा जाते हो कि अरे भाई 83 मीटर का छक्का लगा, अरे वो बेचारे गॉर्डन ग्रीनिस मर गया पूरी जिंदगी खेलता खेलता, उससे नहीं लगा और ये मारने लग गया। तो ये आपके साथ खेल हो रहा है, ठीक है। तो जब आपके इक्विपमेंट अच्छा, फिर पहले बैट क्या होते थे, बैट में स्वीट स्पॉट जो होता था, अगर ये बैट का हुआ है तो स्वीट स्पॉट सिर्फ एक जगह पर होता था, अबाउट से 60% नीचे और नीचे से 20% ऊपर, उस तरह का स्वीट स्पॉट। आज बैट्स को, क्योंकि पैसा बहुत है, जो मैन्युफैक्चरर्स भी बना रहे हो, पूरा स्वीट स्पॉट वाला बैट का आइडिया ले रहे हैं और वही प्लेयर्स को दिया जा रहा है। तो ऐसे में बॉल का इम्पैक्ट भी अलग है, बैट जल्दी भी टूटते हैं, क्योंकि जो उसका जो मेन वो है, जो लकड़ी का जो कच्चा वाला पार्ट है, जो स्वीट स्पॉट बनाता है, वो उसकी वजह से उसकी लाइफ भी कम है, लेकिन वो ट्रेवल बहुत करता है। तो ऐसे में जब ये ट्रेवल वाला और ये सब कुछ खेल होता है, तो ये 5 छक्के भी नजर आते हैं। युवराज के, खैर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि युवराज एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उसमें कभी फिर जाएंगे। लेकिन युवराज को छोड़िए, फिलहाल रिंकू सिंह पे कंसंट्रेट कीजिए और उनकी बॉडी बिल्ट को देखिए, और दूसरे प्लेयर पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा तरस खाइए, बाकी क्रिकेट में और कुछ नहीं रहेगा। Explore your creativity with classes in illustration, photography, design, and more. Start for free today by clicking the link below. मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ बरस पहले मैंने एक टीवी चैनल के लिए शो किया था, काफ़ी सक्सेसफुल शो था, उसका नाम था सिली पॉइंट, और उसमें वकार यूनुस आए हुए थे एज वन ऑफ द मेन गेस्ट्स। तो वकार यूनुस से मैंने ये पूछा था कि आप और वसीम अकरम, आप लोगों ने ये शुरू किया था रिवर्स स्विंग, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, शायद ही आपसे बेहतर कोई ऐसा बॉलर रहा हो जो यॉर्कर इस प्रेसिशन से बॉलिंग करता था। हमने कहा आपको टो क्रशर कहा जाता था, वो बॉल यॉर्कर तो होती ही थी वो, लेकिन हवा में स्विंग करती थी, इतना मुश्किल हो जाता था बैटर के लिए। तो मैंने ये उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि जो टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छा फास्ट बॉलर यॉर्कर कर सकता है ऑन द डॉट, वो शॉर्टर फॉर्मेट में क्यों नहीं कर सकता। तो उनका जवाब था कि उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ आपको समझना पड़ता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और दूसरी बात उन्होंने हंस के ये भी कहा था कि जब हमने शुरू में रिवर्स स्विंग किया और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को समझ में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को समझ में नहीं आया, तो वो हमें चीट
कहने लगे. जिस दिन से उन्हें समझ में आ गया तो it became part of the game. But more specifically on the Yorker, because I'm very, very keen on understanding this, that one was Waqar Yunus. He's like a hero of his time. So many bowlers have followed him. But you take a Siraj, you take a Khalil. Now, in a different format, they're very good with the Yorker. But suddenly in the IPL, they're all over the place. Why? अरूप, टेक्निकली अगर इसको साइंटिफिकली आप समझे तो एक पेस बॉलर जो 90 किलोमीटर पर आवर की 90 माइल्स पर आवर की स्पीड पे बॉल कर रहा है, तो उसका जो बॉल का जो ट्रेवल टाइम है दैट इज 0.4 सेकेंड्स, यानी स्प्लिट सेकेंड में आप 1/4 नीचे चले जाते हो. सो दैट्स मतलब कि वो पेस. तो सेम टाइम बैट्समैन के पास है रिएक्ट करने का. सो नॉर्मली बैट का जो अगर आप इसको स्पोर्ट्स साइंस की तरफ से लीजिए तो आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करने में फ्रॉम माइंड टू बॉडी इट टेक्स अबाउट 0.3 सेकेंड्स, और उसको फिर एग्जीक्यूट करने में 0.3 सेकेंड्स. सो बैट्समैन को रिएक्शन टाइम या हिट करने का टाइम है 0.6 सेकेंड्स, और बॉलर के पास है 0.4. सो बॉलर ऑलवेज हैज दैट एडवांटेज. अगर पेस बॉलर है वो उसको बीट करता है. अगर आप पुराने वेस्ट इंडीज या लिली थॉमसन जो लेनी पास्को की बात करें तो वो लोग कैसे बीट करते थे, क्योंकि आपका रिएक्शन टाइम, और उसी वजह से ग्रैहम गूच हो या बाद के विनोद काम्बली, कई ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने आपने देखा होगा उस रिएक्शन टाइम को कम करने के लिए बैट उठा करके खेलना शुरू कर दिया, बिकॉज दे वांटेड टू कट डाउन ऑन दैट रिएक्शन टाइम. वरना बॉल जब तक बैट आता था बॉल निकल जाती थी और उनकी विकेट उड़ जाती थी. तो ये जो एडजस्टमेंट है उसका फर्क क्या पड़ता था उन दिनों में, क्योंकि पेस बॉलर्स के बाउंसर मारना होता था, पेस बॉलर्स के पास वो टाइम था, और दूसरा रिएक्शन टाइम में जो थोड़ी सी कमी रह जाती थी उसमें बैट्समैन को थोड़ा सा हरी अप करना पड़ता था, उसमें गलतियां होती थी. नाउ व्हाट हैज हैपेंड विद ऑल दिस के जो जितना अब आप बाउंसर मारो तो आपको फर्स्ट वार्निंग, दूसरे में नो बॉल देना शुरू कर देता है, फ्री हिट होती है. तो आपने बॉलर के साथ बहुत सी ऐसा मैं कहूँगा क्रुएलिटी की है कि उसके हाथ से तो सब कुछ छीन लिया, एंड यू हैव गिवन एवरीथिंग टू द बैट्समैन. सो नाउ बैट्समैन इज द किंग. वो देखता है कि ये बॉलर है, कोई बात नहीं, तू बेटा तू तो फ्री हिट से भी बचना चाहेगा, तू मुझे आउट नहीं कर सकता, और तेरे सब कुछ अगेंस्ट लोड हो गया हुआ है, हर एक चीज आपके. आप तो वाइड्स को भी थोड़ा सा भी बॉल इधर उधर गई तो अब आप उस पे भी वाइड पे भी आप रेफरल ले रहे हो. तो बॉलर के पास क्या रह गया? बॉलर्स के पास एक ही चीज रह गई है, आइए और कोशिश कीजिए कि जितनी तेज पहुंचा सके बॉलर को. एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू से कि वो फुल टॉस कर रहे थे, जितनी बॉल तेज जाएगी और स्ट्रेट जाएगी उतना रिएक्शन टाइम उसका कम हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, और बॉलर की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी. इसलिए बॉलर कई बार कोशिश करते हैं, खासकर लास्ट ओवर्स में मारना पड़े, कि हम किसी तरह इसको थोड़ा सा ज्यादा तेज करने की कोशिश करें, उसको बीट करें. तो यॉर्कर तो हो नहीं पाता. बॉल को आजकल एक वैसे भी आपने नया चीज देखी होगी, आजकल लास्ट ओवर्स में बॉल को आलू की तरह पकड़ना शुरू कर दिया. सीम पे नहीं पकड़ते बॉल को. जब सीम पे पकड़ते हैं तो बॉल थोड़ा सा करतब दिखाएगी. अब उसको क्रॉस सीम पकड़ते हैं, आलू बॉल जिसे हम कहते हैं, उसको पकड़ करके करते हैं. उससे क्या होता है, थोड़ा बॉल बाउंस वेरी करता है, थोड़ा कोशिश करते हैं बॉल को हवा में थोड़ा सा स्लो कर दे. लेकिन वो सब वेरिएशन है जो मुझे नहीं लगता कि आप इतने आर्टिस्ट हैं. खासकर यश दयाल की बात करें, यंगस्टर हैं, अच्छा करियर अभी तक चल रहा था, पैसा भी मिलना शुरू हो गया, गरीब परिवारों के हैं, या फॉर दैट मैटर उमरान मलिक जो इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स हैं, उनको अब ये T20 खिला के वैसे ही खत्म कर रहे हैं. उनको कहाँ पर आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए प्रिजर्व करना था, कहाँ आपको कुछ और खिलाना था, लेकिन यहाँ पर मार पड़वा रहे हैं. उनको मार भी पड़ेगी, वो डिप्रेस भी होंगे, वो वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स से भी बाहर होना शुरू हो गए हैं. अब वो कहीं भी उनको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आप देते. तो ऐसे में जो है डिप्रेशन जो है आपका, ये जो स्टोरी है, इट्स ए वेरी सीरियस इशू जो हमारे प्लेयर्स के स्पेशली द फास्ट बॉलर्स के सामने पड़ा है, कि वो करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ. जी बिल्कुल. एक और इंसिडेंट की तरफ हम आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहते हैं. ये है कार्लोस ब्रैथवेट, और ये वेस्ट इंडीज के बैटर थे, और 2016 का T20 वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो उस समय वो इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइनल मैच चल रहा था. इंग्लैंड had to defend 19 runs of the final 6 balls. Ben Stokes bowling कर रहे थे. फिर क्या हुआ that Carlos Brathwaite comes in, takes guard, and then he hits 4 back-to-back sixes. After that, of course, Stokes was in a state of shock. He said, it took me several days and months to try and cope with it. I just couldn't believe what happened. The captain
Owen Morgan also then later consoled him and said that I have never seen this kind of hitting, that a man just comes in from the dugout and hits a top class fast bowler for 4 sixes back to back. I have seen a documentary on Ben Stokes, and later on in life he suffered from severe depression. It almost cost him his career. उन्हें एक लंबे अंतराल तक उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला. उनकी और दिक्कतें भी थी, एक ब्रॉल में भी इन्वॉल्व हो गए थे, अपना टेम्पर लूज कर दिया. उन्होंने कहा बहुत ही मेरी जो हालत थी वो बहुत खराब हो गई, और इस इंसिडेंट की वजह से भी काफी हद तक मैं बिल्कुल बिखर गया. अब ये बेन स्टोक्स का जो सपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा है. ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनकी मदद की, वो उभर के आए, अब कप्तान बन गए हैं. लेकिन उनका जो रवैया है यंगर प्लेयर्स की तरफ वो बहुत फादरली है, एक बहुत अच्छे तरीके से वो बातचीत करते हैं. एंड ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स इन द गेम टुडे. बट व्हाट इज अमेजिंग, CS, is that someone as tough as Stokes had to go through hell, which is there in that documentary, almost ruined his career, had severe depression. He couldn't even speak for days on end. He said his wife was extremely worried. So you can imagine the massive negative impact. Arup, take example of, Ben Stokes has all the support system, and he has, psychologists, your sports analysts, and all the trainers who could work on these kind of, players. और उस डिप्रेशन को बाहर करने के. But take an example of, say, Pawan Negi, for that matter. Couple of years back, 4-5 seasons back, if you remember, he was picked for 8 crores by Delhi, I think, Delhi team, if I'm not wrong. And before that season, he was in lakhs, 20 or 50 lakhs. And after one season, after 8 crores, suddenly he became a star, and everybody was trying to take him for endorsements and everything. I don't know how much money he got. That's a separate issue. But next year, he was again nowhere, because he could not perform at that particular level. उसको जब भी भेजते थे, Pawan Negi, mean, when you have a asking rate of, say, 10, 12, suddenly you are sending Pawan Negi because he became the star, and he could not perform because he never had that kind of, I would say, temperament, for that matter, to survive at this level. He was coming from Ranji Trophy, and Ranji Trophy also, he was an average player. He was nowhere. Suddenly some great cricket thinkers picked him for this much. But what happened ultimately? His career was finished. Now he's nowhere in the Delhi team. He's nowhere to be seen in the cricketing circles. So I can name a lot of players. Maybe Yash Dayal is another one. Maybe next season you won't find him anywhere in the IPL team. I hope this would not happen. But again, he could be a victim of this kind of thing. So you have support system for 24, 26 players whom you have given contracts. Okay, they can survive. If they get injured, they go to NCA. If they have any problems, BCCI takes care of their, like Rishabh Pant, for all the medical expenses, BCCI is paying. But what happens to all these other players, If they get injured, nobody takes care of them. If they have some mental issues, nobody is taking care of them after this 53, 54 days. So when there are sufferings, there are problems with all the fringe players. But unfortunately, in India, you are only a star till the time you are there on the screen. The moment TV जो कहते हैं switch off होते हैं, उसके बाद you are not a star. Only those 11 people or 15 players who have been representing Team India, only they are the star. Rest all are only there as a matinee show in the night, और उनको देख करके और उसके बाद लोग घर चले जाते हैं. मेरे पास एक लिस्ट है कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स की जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए थे, और ये सिर्फ बॉलर्स ही नहीं है, बैटर्स भी हैं. और सबसे पहला नाम जो मेरे लिस्ट पे है वो मार्कस ट्रेस्कॉटिक का है. इंग्लैंड ओपनर थे, बेहतरीन प्लेयर थे, और उनको एक बड़ा ज़बरदस्त एक मेंटल इशू के दौर से गुजरना पड़ा. वो कोप नहीं कर पाए और वो प्रीमेच्योर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली. मुझे अभी भी याद है हरभजन सिंह के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इन माय टाइम प्रोबेबली द बेस्ट ओपनर वाज मार्कस ट्रेस्कॉटिक. विराट कोहली जो एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, 2014 में एक फेलियर थी उनकी इंग्लैंड में, वो खेल नहीं पा रहे थे, उसके बाद उन्हें भी एक अजीब दौर से गुजरना पड़ा. उन्होंने कहा कि मैंने ग्लेन मैक्सवेल से काफ़ी कुछ सीखा, और कैसे ब्रेक लिया जाता है, सबैटिकल यूज़ करते हैं, and how you can switch your mind off is very important. Jonathan Trott, another England player whose career got stymied. Sarah Taylor, she was the England cricket team's one of the main players, and she was instrumental in their winning a major title. She had to go through hell. Andrew Flintoff,
I've seen his documentary, and there he mentions about the fact that he had a drinking problem, he had a mental health issue problem, and a person as brilliant as Flintoff, in his time, one of the best all-rounders in the world, said that I found it so difficult to cope, और बहुत हमें तकलीफ होने लगी. प्रवीण कुमार, आपको याद होगा, एक बहुत बढ़िया स्विंग बॉलर यहाँ मेरठ से थे, और वो CS उसके बारे में जरूर बोलना चाहेंगे. और उन्होंने ये खुद ही कहा कि he had missed the 2011 World Cup due to personal reasons, and in 2014 he was unsold in the IPL auction. यहाँ तक एक इंटरव्यू में शायद इंडियन एक्सप्रेस को दिया था कि उन्होंने कहा मैं तो सुसाइड करने के लिए भी सोच रहा था. CS ऐसे कई नाम है, ग्लेन मैक्सवेल, बेन स्टोक्स, और खासतौर से प्रवीण कुमार एक ऐसा नाम है कि ये एक क्लासिक एग्जांपल है यहाँ इंडिया में कि जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े प्लेयर्स को तो फिर भी सपोर्ट मिल सकता. व्हाट अबाउट प्रवीण कुमार? देखिए, देयर इज ऑलवेज ए विस्पर कैंपेन. अगर आपको इंडियन टीम में किसी का करियर खराब करना है तो आपका एक जो सपोर्ट स्टाफ, बीसीसीआई सोर्सेज, यू नो, व्हिच whom we call sources, स्टोरीज तो वहीं से मिलती है. आपको कप्तान या बीसीसीआई प्रेसिडेंट से तो स्टोरी नहीं मिलेगी. तो ऐसे में एक विस्पर कैंपेन चलाया जाता है जो प्रवीण कुमार के अगेंस्ट, जब आपने प्रवीण की बात की, वो चला. इनको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, इनको डिसिप्लिनरी इशू है, ये ऐसा बवाल करते हैं पीने के बाद, या ऐसा. आई थिंक इन द लास्ट से 15 years और सो, मनोज प्रभाकर के बाद अगर कोई जेन्युइन स्विंग बॉलर आया तो वो प्रवीण कुमार था. और जहीर ऑब्वियसली एज ए लेफ्ट आर्म वो एक अलग थे, बट राइट आर्म की मैं बात कर रहा हूँ. तो वो सबसे अच्छे बॉलर वो आए. उसके बाद जब उसका रिप्लेसमेंट भुवनेश्वर आए, तो आई वुड अगेन से भुवनेश्वर वाज नॉट इवन हाफ ऑफ व्हाट प्रवीण कुमार वाज. लेकिन उनको उस विस्पर कैंपेन से, फॉर सम रीजन, देयर आर ऑब्वियसली रीजन जो हम जानते हैं, बट अगेन कोई ऑथेंटिक वो नहीं होता सोर्स, तो उस वजह से उनका करियर ही खराब कर दिया गया. वो जब खेल सकते थे इंडिया के लिए कम से कम 3-4 साल और 5 साल और खेल सकते थे, उनको घर पे बिठा दिया गया. ऑब्वियसली डिप्रेशन होगा, आप बुरी तरह से अलग अलग जो कहते हैं मेंटल उस फेजेस से गुजरते हैं जहां पर आपको जीना मुश्किल हो जाता है. एंड आई रिमेंबर दैट फेज. वी मेट प्रवीण कुमार एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और वो सुसाइडल हुए पड़े थे. बट एनीवे, वो एक अलग चीज है. बट ही वाज प्लेइंग फॉर इंडिया. ही वाज विक्टिम ऑफ ए विस्पर कैंपेन. आई नो किस ग्रुप से चला था, किस वजह से वो पर्टिकुलर, शायद कप्तान ही नहीं चाहता कि वो खेले, पर वो एक चीज है. अब लेकिन ऐसे फ्रिंज प्लेयर्स, मैंने कहा ना, जो बड़े प्लेयर्स है, प्रवीण फेमस हो गए, या फॉर दैट मैटर जो बाकी के फ्लिंटॉफ हो या कुछ हो, ये सब हाईलाइट हो गए. लेकिन आप एक टीम में, इंडिया में जब आप, जैसे आज तो ज्यादा टीम्स है, उस वक्त पे 20-21 टीम्स होती थी. 20-21 टीम का रणजी ट्रॉफी में देखें कितने फेड आउट होते हैं. एंड एवरी प्लेयर हु हैज बीन प्लेइंग रणजी ट्रॉफी, आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, उसमें 19-21 का फर्क होता है. देखिए, सचिन तेंदुलकर एक होता, आउट ऑफ द वर्ल्ड, अलग हो गया. जहीर खान टाइप के टैलेंटेड अलग हो गए, इस तरह के. बट नॉर्मली ऑल दीज प्लेयर्स आर 19-21. जिसको चांस मिला वो टीम में आ गया, जिसको नहीं मिला वो नीचे रणजी ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी, ये सब खेलते रहते हैं. लेकिन आप उसमें फेज आउट कितने होते हैं, उसमें से कितनी कैजुअलिटी है, अगर आप हर साल देखें तो करीब करीब नॉर्मल. मुझे याद है 2006-2007 पे हम कभी ऐसी डिस्कशन कर रहे थे, हमने लिस्ट निकालनी शुरू की ओनली टॉप की 8 या 10 टीम में, जो इंडिया की टॉप टीम्स है, इंक्लूडिंग बड़ौदा एंड गुजरात, ये सब हमने काउंट किए. करीब लास्ट ईयर से उस साल तक करीब 50 विक्टिम्स ऐसे थे जिनकी लास्ट ईयर मॉडरेट वो थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, लेकिन किसी को इंजरी का भी होगी, किसी का कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगी, किसी को नौकरी का इशू था, किसी को घर पे कोई प्रॉब्लम होगी, उसको घर पर बैठना पड़ा, एक आधा कुछ मैचेस वो नहीं खेल पाए डिस्ट्रिक्ट के या कोई ऐसे नेशनल, और उनको ड्रॉप कर दिया गया. तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो क्रिकेट में, जिसका कोई रीजनिंग नहीं है. आज क्रिकेट में सभी लोगों को मालूम है, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप किसी भी ग्राउंड या किसी टीम की तरफ जाइए, आपको एक पैकेज डील ऑफर की जाती है. ये जो लोग ऊपर राज कर रहे हैं ना, ये राज ऐसे नहीं कर रहे हैं. जो बहुत सी, जैसे बिहार क्रिकेट की मैं आपसे बात करूं, बिहार क्रिकेट में पिछले एवर सिंस जब से इनको वापस मान्यता मिली है, बीच में तो बीसीसीआई ने मान्यता उड़ा दी थी, झारखंड को दे दी, बिहार से झारखंड टूटा, झारखंड को दे दी, बिहार को हटा दिया. सोचिए कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा. खैर, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद से कुछ ऐसे ऑफिशियल्स आ गए जिन पर करप्शन के बहुत चार्जेस थे. वहां पर ऐसा एक डोमेस्टिक नॉट डोमेस्टिक, एक आईपीएल की तर्ज का T20 टूर्नामेंट भी हुआ, जिसमें अखबारों में बहुत आया कि बहुत सी बैटिंग हुई, कई 100 करोड़ की बैटिंग हुई एक एक मैच की, और कुछ लोग पकड़े भी गए.
तो ऐसे में ऑब्वियसली वहाँ के जो रहनुमा थे, जो वहाँ के कार्यकर्ता, जो लोग चला रहे थे क्रिकेट, उन पर बात हुई, बीसीसीआई में कंटेम्प्ट इशू भी लगा, बट बीसीसीआई का सॉरी सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट इशू भी लगा, लेकिन बीसीसीआई के अपने लॉजिक होते हैं कि जी हम नहीं हटा सकते, हम देख रहे हैं, एक कमेटी बनाई, उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो आज वहां पर जाइए, मुझे याद है मेरे पास कई प्लेयर्स आ चुके हैं, मैंने 1-2 स्टोरीज भी की, जिसमें ये कहते हैं कि जी पैकेज डील होती है, आपको इतना मैच खेलना है, इतने करो। दिल्ली में भी सेम होता है, हर जगह होता है। आई एम श्योर मुंबई को छोड़ करके, मुंबई का एक स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अदरवाइज आपको कितने मैचेस खेलने, आपको पैकेज डील है। आपको 1 रुपए में 1 मैच मिलेगा, 2 रुपए में 2 मैच, 5 रुपए में 3 मैच, इस तरह के आपको ऑफर किए जाते हैं। तो जब आपको ऐसी क्रिकेट होगी, तो वो डिप्रेशन, वो बच्चा जो गरीब घर से आ रहा है, जिसको जो अफोर्ड नहीं कर पाता, वो लाखों रुपए कहाँ से लाएगा? उस पैकेज डील में तो एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में कई लोग फेज आउट हो जाते हैं। इनफैक्ट 2006-7 की ही बात है, मुझे याद है, जब दिल्ली के एक लड़का था, मोहित शर्मा या कुछ, मैं सेकंड नाम शायद ठीक से नहीं कर रहा, बट मोहित लड़का था, अंडर 15 खेल रहा था, उसने लगातार 3 सेंचुरीज की। मैंने ये स्टोरी की थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, आई रिमेम्बर दैट टाइम। उसको 3 सेंचुरीज को घबरा गए हमारे जो सिलेक्टर्स थे कि अरे इसने तो जगह ब्लॉक कर दी, उसको ड्रॉप कर दिया। हमने पूछा क्यों किया, कि जी थोड़ा इंजर्ड, उससे पूछा नहीं जी इंजर्ड नहीं, बाहर बिठा दिया। फिर उसको अगले सीजन में 1 मैच खेला, उसने सेंचुरी की, फिर पूरा सीजन नहीं खिलाया। इस तरह के होते, बिकॉज क्यों, वो एक गरीब घर का बच्चा था, उसकी जगह जिसको खिलाया वो मोटा मालदार आसामी था, उसने 0-0 किया, 8 रन का हाईएस्ट था। तो ये जो चीजें हैं, जो क्रिकेट में ये सब कुछ चल रहा है, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। देयर आर सीरियस इश्यूज, जिसमें मेंटल इश्यूज को अगर आप इन्वॉल्व कर दें, जो ये प्लेयर जो थोड़ा बहुत खेलते भी और उनको इस तरह का हिट किया जाता है, मुझे लगता है इसमें एक बहुत सीरियस रीथिंकिंग की जरूरत है, एंड स्पेशली फ्रॉम द बीसीसीआई साइड, कि क्रिकेट को कैसे इंप्रूव किया जाए। जो हम अभी देख रहे हैं वो डिटेरिएशन ऑफ क्रिकेट है, दैट इज नॉट इंप्रूवमेंट ऑफ क्रिकेट। अपार्ट फ्रॉम वन थिंग, जो एक चीज क्रिकेट को बेनिफिट हुआ वो है फील्डिंग, आईपीएल से, बाकी सब कुछ बर्बाद हुआ है। Okay, we'll leave it at that, CS, and we've covered a lot of points about the impact of negativity on bowlers, on young players who are unable to perform, who come under the pump, and while the whole stadium applauds the sixes, what happens to the hapless bowler who is bowling? There are many whose careers have got destroyed, ruined, they have mental health issues. Before wrapping this up, I'll just quickly take you through some instances of the IPL, since we are in the middle of the IPL season. So one was in 2020, Rahul Tewatia. He smashed 5 sixes in a single over of Sheldon Cottrell. Ravindra Jadeja struck 5 sixes in an over of Harshal Patel. In fact, Harshal Patel holds the joint record of conceding 37 runs in one over. Then, of course, the universe boss Chris Gayle, who's been smashing sixes at will. So in one over, he again smashed 5 sixes in an IPL over. And Marcus Stoinis and Jason Holder. This is an interesting story. This happened in 2022, last season, where Marcus Stoinis first hit 3 sixes of a bowler called Shivam Mavi, and then he got out, and then Jason Holder comes in and he hits him for 2 more sixes. So 5 sixes consecutively in an over. The whole stadium applauds, log khush hote hain, taali bajate hain, lekin spare a thought for the bowler. You should remember the bowler, and like CS is saying, that people who come from economically poor strata of society, who get a chance, they should be backed, they should be looked after, not just the big guns who come from affluent families. It's a matter of a class divide, it's an economic divide, and BCCI needs to look at this very, very seriously. Thanks for watching. Thank you, CS. We'll be back with more. Always a pleasure. Thank you.